Now let us start this. Now we are going to start this topic, parallel lines and transversal. So parallel lines we have already discussed. What is parallel lines? The lines which do not intersect each other. That lines are called as what is parallel line? Parallel line. Parallel lines are those lines which do not intersect each other, right? Which do not cut each other at any point. That is called as parallel line. So this thing we have already discussed. Let me draw the parallel lines here. It lines look like this. So these are the parallel lines. Or we can say that if the perpendicular distance between these two lines is always constant and is same. अगर ये distance हमेशा same रहेगी, this distance is same always, then that two lines are called as parallel lines, right? And the next we are going to discuss in detail about these parallel lines here. And second word used here written on the screen, one word is used parallel lines and second word is used here written transversal. So what is transversal? Basically transversal is also a line. Transversal is also a line. एक line ही होती है. Suppose, and what is that line? Suppose there are two lines are there. There are two lines like this. It may be non-intersecting also or it may be intersecting also. If the two lines are like this, in that case there is a third line, एक कोई तीसरी line आई और इन दोनों को cut कर दिया उसने. So that third line cut these two lines, right? Cut these two lines at point A and at point B. So in that case, that third line, this third line which intersect the two lines is called as transversal. So this is called as transversal. So this line is called as transversal. So we will discuss this in detail. And it may be in the parallel lines also. ये parallel lines में भी हो सकता है transversal. It may cut, suppose it may cut these parallel lines like this. So then in that case, this line is called as transversal. Yes. Can you repeat what is transversal? Okay. So basically transversal, this is the transversal. So transversal एक line होती है which cut the two lines. जो दो lines जा रही हैं which cut that two lines, that line is called as transversal. So transversal, what is transversal? Transversal is a line. कैसी line? जो other two lines को cut करती है. That line is called as transversal. Let us discuss in detail this thing. Look at this here. Look at the screen here. It is recall that a line which intersect two or more lines at a distinct point is called transversal. Two lines का example हमने लिया था. There may be a three line also, four line also, two or more. Then that line is called as transversal. इस example में देखिए यहाँ पे एक line M है. This is line M. There is another line N. This is line N. And this is line L. ये एक लाइन L है. दिस लाइन L इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्सल क्योंकि इसने दो लाइंस को कट किया है डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे. डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट किया है, देन इट इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्सल. इस डिस्टिंक्ट पॉइंट वर्ड का मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. इसका मतलब क्या है? डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करे. लेट मी एक्सप्लेन दिस. सपोज ये दो लाइंस हैं. दीज आर द टू लाइंस, राइट? एंड इफ देयर इज अ लाइन, दिस इज द कॉमन पॉइंट ऑफ दिस टू लाइंस. इन दोनों लाइन का कॉमन पॉइंट है, ठीक है? अगर इस कॉमन पॉइंट से कोई लाइन पास कर रही है, सपोज अ लाइन इज पासिंग थ्रू दिस कॉमन पॉइंट, सो इज दिस ट्रांसवर्सल? इज दिस पासिंग थ्रू द डिस्टिंक्ट पॉइंट्स? No, it's not transversal, right? And if this line passing through from here, is this transversal? Yes, it's transversal. Yes. It is passing through the two distinct points. और ये single point से pass कर रही है. I hope this transversal is clear to you now, right? So line Yes, L sir. intersect line M and N at a point P and Q respectively. Line L P और Q पे कट कर रही है in this figure 6.18. Therefore line L is a transversal for lines M and N. इस एग्जाम्पल में फिगर 6.18 में लाइन L को ट्रांसवर्सल बोलेंगे. किसका ट्रांसवर्सल? लाइन M और लाइन N का ट्रांसवर्सल.
ऑब्जर्व द 4 एंगल्स आर फॉर्म्ड एट ईच ऑफ द पॉइंट P एंड Q। तो यहाँ पे जो एंगल्स बनाती है ये लाइन ट्रांसवर्सल 8 एंगल्स फॉर्म करती है। कौन से 8 एंगल्स? यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे 8 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। एक एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, 4 एंगल यहाँ पे बन रहे हैं। 5, 6, 7, 8, so 8 angles are there, right? इन 8 angles में से so these are the angles, so इनके नाम हम लोगों ने दिए हैं। one, let us the name of one angle is exterior angles, one type of angle exterior angle and second type of interior angle. Now let us discuss these exterior and interior angles. So what is exterior angle? So exterior angle, if you look at this angle 1 here, ये angle 1 आपको दिखाई दे रहा है, this angle 1 and this angle 2, right? And this angle 7 and this angle 8. Agar, let me explain this thing to you. Suppose if these are the two lines, let me take an example here. Suppose these are the two pens. ये मैंने पेन लिए हैं, ये दो लाइन है, राइट? ये दो लाइन है। अब इस लाइन से एक थर्ड लाइन यहां से इनको कट करके चली गई इस तरह से, राइट? So this third line is called transversal, इसको बोलेंगे ट्रांसवर्सल, राइट? अब इसमें आप देखिए ये लाइंस के अंदर वाला पार्ट है, अंदर वाला, और ये पार्ट ऊपर जो है और जो नीचे है ये लाइंस के बाहर वाला पार्ट है, राइट? Are you presenting? Just a minute. ओके, सो दिस इज, ये लाइन के अंदर वाला पार्ट है इंटीरियर, इसको बोलेंगे, और ये लाइन के बाहर वाला पार्ट है, ठीक है? ये ऐसे समझो जैसे घर है, ये घर की वॉल है और ये घर की वॉल है, तो ये घर का इंटीरियर है और वॉल के इधर एक्सटीरियर, राइट? अब इसमें आप देखेंगे अगर ये ट्रांसवर्सल 8 एंगल्स बना रहा है, ठीक है? 8 एंगल्स, उन 8 एंगल्स में से लेट मी एक्सप्लेन दिस, लुक एट दिस हियर, इन दिस 8 एंगल्स, if you look at this angle 1, if you look at this angle 2, look at this angle 7, look at this angle 8, ये एंगल एक्सटीरियर है, बाहर है ये एंगल, राइट? सो हियर दिस एंगल 1, 2, 7, 8 are called exterior angle, right? And if you look at these angles here, this one, let me rub it, if you look at these angles, angle 3, angle 4, angle 5, एंगल 6, ये घर के अंदर है, दोनों लाइंस के जो बीच में जो एंगल होंगे इन बिटवीन दीज टू लाइंस, दैट इज कॉल्ड एज इंटीरियर। इंटीरियर मींस अंदर, इंटीरियर एंगल्स। सो दिस 3, 4, 5, 6 is called as interior, 3, 4, 5, 6 are called interior angles, right? I hope these angles are clear to you, what is interior angle and what is exterior angle in this figure when a transversal divide a line. जब ट्रांसवर्सल दो लाइंस को इंटरसेक्ट करती है तो 8 एंगल्स टोटल फॉर्म होते हैं, 8 एंगल्स वहां पे फॉर्म होंगे, टोटल 8, राइट? उन 8 एंगल्स में से 4 एंगल इंटीरियर होंगे, 4 एंगल एक्सटीरियर होंगे। इंटीरियर मतलब जो लाइंस के दोनों के बीच में लाई करेंगे, इन बिटवीन द टू लाइंस, और एक्सटीरियर मतलब जो उन लाइंस के बाहर लाई करेंगे, राइट? So I hope this exterior and interior is clear to you now. Yes, sir. If you look at this written on the screen here, recall that in the earlier classes you have named some pair of angles formed when a transversal intersect two lines. So these are as follows. तो कुछ names remember करते हैं, let us recall that things. कुछ angles हमें पता है corresponding angles होते थे, alternate interior angles, alternate exterior angles and interior angle on the same side of the transversal, right? So let me draw the figure for this to understand it in a better way. Suppose these are the two lines, one is going like this
Your Another screen one. is not visible. Screen is not visible. To whom? For me, Divyan. What about others? Screen is visible or not? Yes, sir, it's visible to me. It is both. Sir, but it's not clear, visible, clear. It's blurred. Yes, sir. दिखाई दे रही है स्क्रीन दिव्यांशु? लेट मी प्रेजेंट इट अगेन. Yes, sir. दिखाई दे रही है. Yes, sir. Now it's visible. Sir, now it's visible. Okay. It is clear, sir. Now. Okay. So let me draw the line. So this is the one line and this is second line here like this, and this is the transversal on this line, right? So corresponding angles. So let me give the name for this. Suppose this is angle 1, 2, and we have to take the reference of this 3, 4, and here it is taken 5, 6. This is 5, this is 6, this is 7, this is 8. Right? So exterior angle क्या होते हैं? 1, 2, 7, 8 is the exterior. Interior 3, 4, 5, 6. Right? So 8 angles are there. तो इनकी पेयरिंग करते हैं, 8 angles की पेयरिंग करते हैं. If you look at this angle 1 and look at this angle 5, एक बाहर वाला एंगल, एक अंदर वाला एंगल, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल के सेम साइड में, ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड में, लेफ्ट साइड में एक बाहर वाला एंगल, एक अंदर वाला एंगल, एक एक्सटीरियर एंगल, एक इंटीरियर एंगल. 1, 5. ठीक इसी तरह से एक पेयर बनेगा 2, 6. राइट? एक पेयर बनेगा देखो अंदर वाला 4 and 8. 3 interior and 7 exterior on the same side. So these angles are called as, इनको नाम दिया corresponding angles का. Right? Which one? 1 and 5. Look at this 1 and 5. 2 and 6. This one exterior, one interior on the same side. 4 and 8. 4 and 8. 3 and 7. 3 and 7. These angles are called as corresponding angles. Right? Now, look at this alternate interior angles. तो interior angles की ही बात कर रहे हैं. Interior angles की ही बात कर रहे हैं. Alternate बोल रहे हैं. So alternate इंटीरियर कौन से एंगल हैं? 4 ही एंगल इंटीरियर हैं यहाँ पे. देखो 3 इंटीरियर है, 4 इंटीरियर है, 5 इंटीरियर है और 6 इंटीरियर है. 3 का अल्टरनेट मतलब जस्ट उसके अपोजिट में, उसके सामने. तो 3 का अल्टरनेट कौन होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. 3 का अल्टरनेट होगा 5, लाइक दिस डायगोनली. एक 3 इधर, इधर यहाँ पे 5. और ऐसे देखेंगे तो लाइक दिस. सो यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे कौन है? इसका 4 का अल्टरनेट कौन होगा? 6 इंटीरियर. सो दीज आर द अल्टरनेट इंटीरियर angle which are alternate. 4 and 6, 3 and 5. Similarly, alternate exterior angle. So first of all, what is the exterior angle? 1. 2 is not alternate. 2 उसका कैसा एंगल है? 2 is adjacent, उसका पड़ोसी है. अल्टरनेट कौन होगा इसका? 1 का 7. तो एक्सटीरियर एंगल 1, 7 and 2 and 8. So these are called as 1, 7, 2 and 8 are called as alternate exterior angles. Right? Now look at this interior angle on the same side of the transversal. This is the important thing. इंटीरियर एंगल्स के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब 3, 4, 5, 6 के बारे में बात कर रहे हैं. ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल की सेम साइड में. देखो 3 इसी साइड में कौन सा एंगल है? 6. सो 3 and 6. और लेफ्ट साइड में देखेंगे 4 and 5. सो 4 and 5, 3 and 6. इसके कुछ नाम्स हैं जो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. इट इज हैविंग द वेरियस नेम्स. सो लुक एट दिस. द नेम ऑफ दीज एंगल्स आर interior angle on the same side of the transversal are also called as consecutive interior angles भी बोल सकते हैं इनको. The name is consecutive interior angles or allied angles, or we can say that co-interior angles. Right? Further, many a times we simply use the word alternate angles for alternate interior angles.
राइट। सो क्या बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को अल्टरनेट एंगल्स भी, समटाइम्स वी यूज दिस वर्ड अल्टरनेट एंगल्स, राइट। तो इसके क्या नाम हो सकते हैं इस एंगल्स के, एंगल ऑन द सेम साइड, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, और वी कैन से दैट अलाइड इंटीरियर एंगल्स, और वी कैन से दैट को इंटीरियर एंगल्स। और एक प्रॉपर्टी इनकी और होती है, वन मोर प्रॉपर्टी, यहां पे देखेंगे आप कौन से एंगल्स हैं, 4, 5 और 3, 6। द सम ऑफ दिस टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, जो इनका सम होता है वो सप्लीमेंट्री होता है, जैसे 3 का एंड दिस वन इज कोइंटीरियर इज 6, तो 3 and 6 is 180 degree. Similarly, this one is 4 and 5. According to the figure, 4 and 5. तो ये कोइंटीरियर एंगल्स हैं, इनका जो सम होता है सप्लीमेंट्री होता है, सप्लीमेंट्री मींस 180. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कोइंटीरियर एंगल्स, राइट। Now let's move forward. Okay, now let us find out the relation between the angles in this pair when line M is parallel to line L. तो एंगल्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, when the two lines are parallel. So what is the relation between these two angles? You know that the ruled lines of your notebook are parallel to each other. जो नोटबुक पे जो लाइंस होती हैं ruled lines वो parallel होती हैं. With ruler and pencil, draw two parallel lines along any of the two lines and a transversal to intersect them as shown in the figure. अपनी नोटबुक में आप ऐसे यहाँ पे बनाएंगे, तो ये लाइंस होती हैं parallel lines. M is parallel to N and this is the transversal. L is the transversal. Then this angle is angle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Right? So these are the angles, interior, exterior. So now let us discuss this. Now measure any pair of corresponding angles and find out the relationship between them. तो parallel lines के बीच में transversal जब आ जाता है तब उन एंगल्स की कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ रिलेशंस देखते हैं. तो इसमें क्या होता है रिलेशन, जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं. 1, 5, 2, 6, 4, 8, 3 and 7. फ्रॉम दिस यू मे कंक्लूड द फॉलोइंग एक्सियोम. यहां से एक एक्सियोम हमने कंक्लूड किया. इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन देन ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. अगर ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइन को कट करता है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होंगे, पैरेलल. करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे. ठीक है. और अगर नॉन पैरेलल साइड्स को करता है, नॉन पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करता है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे क्या, नहीं, जरूरी नहीं है. राइट. Axiom 6.3 is also referred as the corresponding angle axiom. Now let us discuss the converse of the axiom, which is as follows. If a transversal intersect two lines such that a pair of corresponding angle equal, then two lines are parallel. जो ये axiom दे रखा है axiom 6.3, ये क्या रेफर करता है, करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम्स भी बोलते हैं इसको. इसका कन्वर्स देखते हैं. इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, अगर ट्रांसवर्सल दो लाइंस को इंटरसेक्ट करता है और करस्पॉन्डिंग एंगल्स, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ जाते हैं तो वो दोनों लाइन कैसी होंगी, पैरेलल होंगी. अगर लाइन पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आएंगे, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो लाइन पैरेलल आएंगी. सो दिस इज द कन्वर्स ऑफ दिस एक्सियोम. डज दिस स्टेटमेंट होल्ड ट्रू? इट कैन बी वेरीफाइड एज फॉलोज. ड्रॉ अ लाइन एडी एंड मार्क अ पॉइंट बी एंड सी ऑन इट. एक लाइन एडी बनाइए, उस पे एक पॉइंट मार्क कीजिए बी, एक पॉइंट मार्क कीजिए सी. एट बी एंड सी कंस्ट्रक्ट टू एंगल्स इक्वल टू ईच अदर. दो एंगल्स बनाइए, एक एंगल यहां से एस और एक क्यू को ज्वाइन करता हूं. एंड दीज टू एंगल्स आर इक्वल. दोनों एंगल इक्वल बनाइए. इक्वल बनाएंगे कैसे, विच एंगल, दिस वन एंड बीसीएस, दिस वन. तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, एक बाहर एक अंदर वाला. राइट. After this, what you have to do, produce QB and SC on the either side of AD to form two line PQ and RS. आप इसको प्रोड्यूस कर दीजिए. ये फिगर हमने बना ली थी. अब आप B को और P को प्रोड्यूस कर दीजिए, इसको भी प्रोड्यूस कर दीजिए. ठीक है. C को R और इसको B से P तक प्रोड्यूस कर दिया. तो SC लाइन को प्रोड्यूस किया तो ये होगी SR, और QB लाइन को प्रोड्यूस किया तो ये हो गई PQ. राइट. सी फिगर 6.20, इट इज अ फिगर सेकंड.
यू मे ऑब्जर्व दैट द टू लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। आप ऑब्जर्व करेंगे दोनों लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। यू मे ऑल्सो ड्रॉ अ कॉमन परपेंडिकुलर टू द लाइन पी क्यू एंड आर एस एट डिफरेंट पॉइंट्स एंड मेजर देयर लेंथ। आप यहाँ पे कॉमन परपेंडिकुलर लाइन बना सकते हैं, डिफरेंट परपेंडिकुलर लाइन्स एंड मेजर देम। यू विल फाइंड दैट इन सेम एवरीवेयर, जो लेंथ आएगी परपेंडिकुलर लाइन्स की वो सेम आएगी। सो यू मे कंक्लूड दैट द लाइन्स आर पैरेलल। तो हमने कंक्लूड किया लाइन्स पैरेलल है, देयरफॉर द कन्वर्स ऑफ द corresponding angle axiom जिसको बोलते हैं axiom 6.3 is true and we have the following axiom. So this is the axiom here. If a transversal intersect two such lines then their corresponding angles are equal. Then the two lines are parallel. ये converse है, this is the converse of that 6.3. अगर ट्रांसवर्सल क्या करता है, इक्वल करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनाता है, तो लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, अगर यहाँ पे गिवन कंडीशन ये है इसमें, if you look at this, can we use the corresponding angle axiom to find out the relationship between the alternate interior angles when transversal intersect two parallel lines? So this is the transversal, दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट किया, फिगर 6.21, पॉइंट क्यू पे और पॉइंट आर पे। ठीक है, सो इज बी क्यू आर इज इक्वल टू क्यू आर सी। जो बी क्यू आर कहां पे बनेगा, दिस एंगल इज बी क्यू आर, बी क्यू आर, एंड दिस एंगल इज क्यू आर सी, क्यू आर सी, दिस एंगल इज क्यू आर सी। इज दिस टू एंगल्स आर इक्वल, लाइन पैरेलल है तो डेफिनेटली दिस टू एंगल्स आर इक्वल। सिमिलरली दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। हाँ, करस्पॉन्डिंग नहीं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं ये, तो इक्वल होंगे। यू ऑल्सो नो दैट PQA, दिस एंगल PQA इज इक्वल टू QRC, ये QRC के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, समझ रहे हैं आप, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ PQA BQR के इक्वल हो गया। वाई, PQA BQR के इक्वल क्यों है, बाय विच प्रॉपर्टी, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। अगर आप ये वाला एंगल देखेंगे, लेट मी रब ऑल दैट और दिस थिंग्स सो इट इज इजी टू अंडरस्टैंड इट। अगर ये वाला एंगल देखेंगे और ये वाला एंगल देखेंगे तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो अब आप इक्वेशन 1 को देखिए और इक्वेशन 2 को देखिए। इक्वेशन 1 में देखो, यहाँ पे PQA है, यहाँ पे PQA है। PQA is equal to QRC and BQR. So is this means BQR equal to QRC. तो BQR किसके इक्वल हो जाएगा, QRC। तो BQR कहाँ पे है, ये यहाँ पे है, और QRC कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो देख रहे हैं आप, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल आ रहे हैं। किया क्या है बेसिकली, इसको मैं समझाऊं अगर आपको सिंपल वे में, ये 1 है, ये 2 है, तो पहले तो 1 को 2 के इक्वल ले लिया, करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, फिर 1 को ले लिया, ये 3 ले लिया, 1 को 3 के इक्वल ले लिया, क्यों, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। फिर इन दोनों से कंक्लूड करके बोल दिया 2 3 के इक्वल है। यही हमें प्रूव भी करना था। 2 और 3 कैसे एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो दैट इज वी हैव प्रूव्ड दिस थिंग। सिमिलरली दिस AQR, दिस एंगल, दिस वन एंड दिस वन, AQR कौन सा होगा, दिस एंगल AQR, और दिस एंगल ये भी इक्वल होंगे। सो दिस रिजल्ट कैन बी स्टेटेड एज अ थ्योरम गिवन बिलो। तो एक थ्योरम हो गया यहाँ पे, लुक एट दिस थ्योरम। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। इससे हम लोगों ने एक थ्योरम यहाँ पे बना ली है। अगर ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइंस को कट करता है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, राइट। नाउ यूजिंग द कन्वर्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम्स, so that two lines parallel if pair of alternate interior angle is equal। तो कन्वर्स भी सही होगा, अगर लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो इट मींस लाइंस आर पैरेलल। सो लुक एट दिस फिगर 6.22 हियर, द ट्रांसवर्सल PS इंटरसेक्ट लाइन AB। ओके, इट्स टाइम ऑफ टुडे, 3 मिनट ज्यादा ले लिए मैंने। ओके, वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक फ्रॉम हियर इन द नेक्स्ट क्लास। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। Thank you, sir. Have a great day. ओके, सेम टू यू। Bye, sir. Have a great day ahead. ओके।